Hello students, I am Ram Kumar. We shall discuss the first chapter of Literature English course. The name of the first lesson is How Wisdom Got Out. The present lesson is a South African folk tale. Let me explain the folk tale. Folk tales are a treasure house of wisdom. Folk tales are the part of an oral tradition passed down verbally from generation to generation. The South African folk tales, known as myths, are believed to have the power to hold the community together. Common types of folk tales include fairy tales and fables. The South African folk tales are meant to hand down significant knowledge and wisdom from one generation to another. The South African folk tales serve to communicate traditions, customs, lessons and morals to the young in preparation of life's struggle. The South African folk tales commonly use personification. Personification, you can call it in Hindi Manavikaran. Inanimate things, animals and natures are attributed human characteristics. Certain animals demonstrate certain virtues. Human characteristics are attributed to inanimate things, animals and nature. In the South African folk tales, there are many types of animals specific to each culture, demonstrating certain virtues such as generosity, kindness and truthfulness, etc. So these are the few lines about the folk tales. Folk tales are very important. They are a treasure house of wisdom. Now let us come to the storyline. Long, long ago there was a man who possessed all the wisdom of the world. What is his name? His name was Anansi. People used to come to him with questions related to life and other worldly affairs. Anansi is one of the most popular characters in folk tales from Ghana in Africa. This character often takes the shape of a spider and is believed to be the spirit of all knowledge related to the stories. The old Anansi solved such questions every day. Anansi साउथ एशियन फोक टेल्स का एक प्रमुख पात्र है, बहुत ही लोकप्रिय है. Anansi is the protagonist of this story. He is the main character. He is the symbol of wisdom.
The old Anansi solved such questions every day. People used to pay him huge amount as fees for his wise solutions. Anansi लोगों की समस्याओं का निदान किया करता था. हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग उसके पास जीवन तथा सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचते थे. एनएनसाई की एक कमी थी कि वह अभिमानी था और स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था. वह अपनी बुद्धिमत्ता से अलग होना नहीं चाहता. He did not want to share. He did not want anybody to share his wisdom. So we can say that he was selfish. He was proud as well. He was afraid that one day somebody would try to steal his wisdom. He felt at the bottom of his heart that he would be deprived of all respect and wealth that he was getting from the people of his village for his wise solutions, for his wisdom. So he made a plan to collect together all his wisdom in a big pot and hide it in the forest. His son Kweku Shin was smart like him, was smart like his father. He walked behind his father and his big pot. Father Anansi came to the tallest tree in the forest with a purpose to hide the pot of wisdom. His desire was to climb the top of the tree and hang his pot of wisdom on the highest branch so that nobody could see it. एनएनसाई की इच्छा थी कि वह इसे छिपा दे. विजडम के घरे को जंगल में स्थित पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसे छिपा दे ताकि कोई उसे देख न सके. This was the intention of Father Anansi. The old Anansi tied the pot in front of his body and tried to climb the tree. Old Anansi, Father Anansi भी कह सकते हैं, उसने उस घड़े को, बुद्धिमत्ता के उस घड़े को अपने गले में बांध लिया और आगे लटका लिया और आगे लटकाते हुए ने पेड़ पर चढ़ने का वह प्रयास कर रहा था. He tried his best but he could not get beyond the first branch. उसने बहुत कोशिश की पर वह फर्स्ट ब्रांच से आगे नहीं जा पाया. And fell to the ground. और वह ने लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा. He got injured but he was not to give up so easily. ऐसा करने में वह ने जख्मी हो गया पर वह आसानी से अपनी कोशिश छोड़ने वाला नहीं था. He started climbing again. उसने पेड़ पर फिर चढ़ने की कोशिश की. Now he reached the second branch
and fell to the ground. अब वह कोशिश करने के बाद दूसरे प्रयास में ने सेकेंड ब्रांच के पास पहुंचा, लेकिन जो उद्देश्य था उसका छिपाने का, बुद्धिमत्ता के घड़े को सबसे ऊपर की शाखा पर छिपाने का जो उसका प्लान था वह पूरा नहीं हो पाया और वह ने ज़मीन पर लुढ़क कर गिर पड़ा। दिस टाइम हिज इंजरी वॉज ऑल द मोर सीवियर। इस बार उसका घाव और भी ने गहरा था। ही ट्राइड थर्ड टाइम, और उसने फिर तीसरी बार कोशिश की। दिस टाइम ही मैनेज टू कैच द थर्ड ब्रांच, और इस बार कोशिश करने में वह तीसरी शाखा तक पहुंच पाया। ही अगेन टम्बल्ड बैक ऑन टू द ग्राउंड, और इस बार भी वह ने लुढ़क कर जमीन पर ने वापस आ गया। हिज ट्रिकी सन वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश एंड वॉचिंग हिज फादर। उसका चतुर बेटा झाड़ी में छिपा था और अपने पिता के करतूतों का अवलोकन कर रहा था। क्लाइंबिंग द ट्री विथ द पॉट डैंगलिंग बिफोर हिम प्रेजेंटेड ए कॉमिकल सीन। गले में आगे लटकाकर घड़े को वह पेड़ पर ने चढ़ रहा था और 3 बार उसने कोशिश की और तीनों बार अपने प्रयास में वह सफल नहीं हो पाया। यह दृश्य किसी कॉमेडी से कम रोमांचक नहीं था। His son ने suggested the old Anansi to put the pot on his back and then climb. उसका बेटा क्वेस्कू अपने पिता एननसाई को सलाह दिया कि वह बुद्धिमत्ता के घड़े को अपनी पीठ पर रखकर चढ़े। It would be much easier for him to climb the tree then. तब पेड़ पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। Hearing it, Anansi, father Anansi grew angry and threw the pot down onto the ground. यह सुनते ही फादर एननसाई को गुस्सा आ गया और उसने उस घड़े को, बुद्धिमत्ता के उस घड़े को जिसको छिपाने की वह कोशिश कर रहा था, 3 बार उसने कोशिश की पर वह सफल नहीं हो पाया। उसने जमीन पर उस घड़े को पटक दिया। इन एंग्री मूड ही क्राइड आउट, और गुस्से में वह बोल उठा तिलमिलाकर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस विजडम। ने इस बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ, जब मेरा बेटा माई सन कैन डू सच सिंपल थिंग बेटर देन आई। मुझसे बेहतर तरीके से मेरा बेटा इस सरल काम को कर सकता है। ऐसा सुनकर वह काफ़ी तिलमिला उठा, वह गुस्से में आ गया, और जब वह गुस्से में आया तो घड़े में जिस बुद्धिमत्ता को उसने संग्रह कर रखा था ने सारी बुद्धिमत्ता उस घड़े से बाहर निकल गई और ने चारों तरफ संसार में ने वह फैल गई। स्प्रेड ऑल अराउंड द फॉरेस्ट। व्हेन ही ग्रू एंग्री ऑल द विजडम केम आउट ऑफ द पॉट एंड स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया में ने वह बुद्धिमत्ता घड़े से निकलकर ने फैल गई। Thus, this story tells us how there is so much wisdom in the world today. यह कहानी हमें बताती है कि कैसे ने इतनी बुद्धिमत्ता आज संसार में ने लोगों के पास है। This is how people have grown wise enough to manage the affairs of their lives so tactfully. आज लोग इतने टैक्टफुल हो गए हैं, है ना, वाइज होकर ने अपने समस्याओं को निपटा रहे हैं।
विजडम इज ड्यू टू द बैड टेम्पर ऑफ ने फादर एननसाई। फादर एननसाई के गुस्से की यह उपज है। फादर एननसाई यदि गुस्सा न किए होते तो बुद्धिमत्ता उस घरे से ने बाहर नहीं निकल पाती। तो बुद्धिमत्ता को बाहर निकलने में उनके बेटे की बड़ी भूमिका थी। उसने अपने पिता को गुस्से में लाया, सजेस्ट किया। यह उसकी कमी थी। साउथ एशियन फोक टेल्स में प्रोटैगनिस्ट और एंटोगनिस्ट हुआ करते हैं। प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर होता है जो किसी गुणों का संवाहक होता है। वह सोशली और मॉरली रिप्रेजेंट करता है किसी क्वालिटी को, और जो एंटोगनिस्ट होते हैं वे उसकी कमियों को प्रकाश में लाते हैं। उसका बेटा क्वेस्कू शिन एंटोगनिस्ट की भूमिका अदा कर रहा था। उसने पिता को गुस्से में लाया और गुस्से में आकर उन्होंने उस घरे को, बुद्धिमत्ता के उस घरे को ज़मीन पर पटक दिया। और यही वजह है कि बुद्धिमत्ता पूरी संसार में ने फैल गई। फादर एननसाई, his son acted as an antagonist. He brought Father Anandasai so angry. He brought him in a state of angry state and thus helped wisdom come out of the world. और इस तरह ने बुद्धिमत्ता को ने बाहर आने में उसने सहयोग किया। उसके सहयोग से ही, उसके प्रयास से ही ने बुद्धिमत्ता लोगों के पास, संसार के लोगों के पास पहुंच पाई। तो इस तरह यह कहानी हमें एक संदेश भी देती है। संदेश क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज? वन शुड नॉट कीप वंस विजडम टू वन सेल्फ। ने अपनी बुद्धिमत्ता व्यक्ति को छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। वन शुड शेयर इट विथ अदर्स फ्रीली, बिना किसी शुल्क के ने लोगों के साथ, है ना, व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता ने साझा करनी चाहिए। तो इस तरह इस कहानी का जो मुख्य भाव है ना, वह पूरा हो गया। इस कहानी का असाइनमेंट्स: नंबर 1, व्हाट वाज फादर एननसाई फेमस फॉर? इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि फादर एननसाई किस लिए मशहूर थे। सेकंड, व्हाई डिड पीपल गो टू फादर एननसाई? फादर एननसाई के पास लोग क्यों जाया करते थे? व्हाई वाज एननसाई अफ्रेड ऑफ? एननसाई को किस बात का डर था? किस बात से वह ने डर रहा था? व्हाट प्लान डिड फादर एननसाई मेक टू हाइड हिज विजडम? उसके पास जो बुद्धिमत्ता थी, संसार की सारी बुद्धिमत्ता उसी के पास थी, और इस बुद्धिमत्ता को छिपाने के लिए उसकी क्या योजना थी? उसने कौन सी योजना बना रखी थी? ये 4 प्रश्न असाइनमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं। आप इन्हें पूरा करेंगे। थैंक यू।